Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of economics, 12th standard, Commerce and Arts, Chapter 1, Part 3. Friends, in our last two sessions, we have covered meaning and definitions of microeconomics as well as features of microeconomics. In that, we have covered some of the points like microeconomics studies about small individual units with microscopic approach. It covers price theory, marginal analysis. It has very limited scope with partial equilibrium, assumptions and different analysis of market structures. Friends, today we are going to cover the topic of scope of microeconomics. Friends, let me clarify one thing. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन कई टाइम से कर रहे हैं, ये चीज कहां कहां पे काम लगती है, हाउ डज इट वर्क एंड अप टू विच एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. The topic covers total 3 points. Let me start with the very first point, and that is theory of product pricing. Friends, microeconomics studies about market force. Now, what is market force? Market force is the point of juncture where demand analysis and supply analysis intersects. Now, what is demand analysis? What is supply analysis? Demand analysis, that is behavior of individual consumer, and supply analysis, that is behavior of individual producer. Let me explain it. As a consumer, when I go to market to buy something, to buy any single product, how do I behave? At the same time, the seller, the salesman, the shopkeeper, how does he behave to sell that product? That is the combination of demand and supply analysis. So, microeconomic theory, that is theory of product pricing, it explains how the relative price of thousands of commodities are determined in market. In our last lecture also I told you that whatever products we are using, it has some price. Believe me, in our routine life, normally we use 1256 commodities in routine life, and each of these commodity has some price. So how does it determine? That is theory of product pricing. That was our first point. Now the second point is theory of factor pricing. Friends, microeconomics studies about 4 factors of production, that is land, labor, capital and entertainment. Let me clarify. ये वो 4 फैक्टर्स है जिसके बगैर दुनिया में कुछ भी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है. अगर जमीन ना हो तो कारखाने का हवा में डालेंगे, अगर लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन करेगा कौन, अगर मशीन नहीं है तो प्रोडक्शन होगा कैसे. एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? दैट इज बिजनेस माइंड, बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस का कोई मालिक नहीं होगा तो बिजनेस संभालेगा कौन. सो टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. इफ वी आर यूजिंग लैंड, वी हैव टू पे रेंट. इफ वी आर यूजिंग लेबर, वी हैव टू पे वेजेस. इफ वी आर यूजिंग कैपिटल, we have to pay interest on capital. And if any person is using his mind for business, he should earn some profit. So how the different prices of factors of production like rent, wages, interest and profit are determined, it will be studied with the help of theory of factor pricing in microeconomics. That was our second point. Our third point is theory of economic welfare. Now see,
देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर. कोई प्रॉपर्टी संपत्ति का होना, दैट इज वेल्थ, एंड यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, दैट इज वेलफेयर. मेरे पास BMW कार का होना ये वेल्थ है, पर वो BMW कार मैं मुंबई के क्राउडेड एरिया में अगर घुमा पाऊं तो वो वेलफेयर है, वरना उसका कोई मतलब ही नहीं रहता. तो थियरी ऑफ वेलफेयर एक्सप्लेन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. नॉर्मली इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इस वर्ड को हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ सी व्हाट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का एक मतलब होता है कार्य क्षमता. बिलीव मी फ्रेंड्स, काम तो हर कोई करता है. आप काम कैसे करते हो ना, इट डज मैटर. एक स्वीपर, BMC स्वीपर जो रोड पे झाड़ू निकाले ना, वो भी झाड़ू ही निकालता है. और कोई बंदा मॉल में जो स्वीपर है वो भी झाड़ू ही मारता है. दोनों में बड़ा फर्क है फ्रेंड्स. BMC स्वीपर का सैलरी 18 to 25,000 के बीच में रहता है. बाम्बू झाड़ू लेके रोड पे उसे कचरा निकालना होता है, सफाई करनी होती है. काम तो वो भी वही अच्छा कर रहा है. मॉल का बंदा जो है ना, वो प्रॉपर मास्क के साथ, हैंड ग्लोव्स के साथ, मॉप के साथ क्लीनिंग करता है. दोनों में बड़ा फर्क है. एंड दैट इज वाई मॉल का स्वीपर जो है ना, वो अप्रोक्सीमेट 45,000 कमा लेता है. तो दैट इज द डिफरेंस. काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों के काम करने के तरीके बहुत अलग है. तो व्हाट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. Friends, efficiency in production means producing those goods at maximization level with available resources. Whatever resources we have, उन्हीं की हेल्प से हम मैक्सिमम लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ा पाए. देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. अगर हम अभी की बात करें फ्रेंड्स, कोविड-19 की जो क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर हम इसी को नजर में रखें तो मेडिसिन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एसेंशियल कमोडिटीज, इसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ा. तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी लैंड, मशीन्स अवेलेबल है, जो भी लेबर अवेलेबल है, उन्हीं की हेल्प लेकर आपको उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा जो एसेंशियल है. दैट वाज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. आवर सेकंड पॉइंट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. Friends, efficiency in consumption means distribution of goods and services among the people to satisfy them at maximum level. मोदी के कहने के हिसाब से अगर हम सोचे ना, तो ये लॉकडाउन के पहले दिन से कहा गया कि मैक्सिमम पब्लिक तक राशन पहुंचाया जाए, मेडिसिन पहुंचाई जाए, कोई एक भी भूखा ना रहे. तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल इन द सोसाइटी. तो हर एक बंदे तक वो चीज पहुंचाई जाए. दैट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. थर्ड पॉइंट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. नाउ सी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स हम ये बोल सकते हैं इस चीज को कि प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड by the people in the society. इस चीज को समझने लिए कुछ ऐसा समझिए फ्रेंड्स. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी कंपनी गारमेंट्स प्रोड्यूस करती हो, लॉकडाउन के टाइम वो सभी कंपनीज बंद है. तो अगर आप बोलते हो कि इकोनॉमी को भी संभालो, एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए और एसेंशियल कमोडिटी भी सब तक पहुंचनी चाहिए, तो द बेस्ट ऑप्शन कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वापस शुरू करें with that limited labor and capital. But what to produce? Friends, इस वक्त हमें कोई जीन्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कोई टी शर्ट ट्राउजर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. इस वक्त वी नीड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्क, हैंड ग्लोव्स एंड ऑल दैट. दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. सो दैट वाज द आवर टॉपिक ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Friends, in our last session, we have covered the topic of features of microeconomics, जहां पे पॉइंट नंबर 7 था
assumptions. फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के बाद मैं क्यों ये बात निकाल रहा हूं? लेट मी रिकेप दैट पॉइंट जहां पे कहा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस विच आर नोन एज assumptions. मैंने ये कहा था कि इफ दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड, full microeconomic theory is valid. But if these conditions are not fulfilled because of any reason, in any circumstances, automatically the theory will become invalid. उसमें अगर आप थोड़ा रिवाइज कर पाए फ्रेंड्स, दो assumptions conditions थी. First one was ceteris paribus. It means other things remain constant. मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इनऑर्बिट मॉल के फूड जोन में बैठ के लैपटॉप पे आपकी नोट्स टाइप कर रहा हूँ, कोई एक टेबल पे कबल आंखों में आंख डाल के खोया हुआ है, कोई एक टेबल पे कॉलेज स्टूडेंट्स ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, मुझे इन सब से क्या लेना देना, दुनिया गई खड्डे में, मेरे को क्या? पर फ्रेंड्स, अब उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, क्या ये सिचुएशन हर एक सर्कमस्टेंस में फेवरेबल होती है? द आंसर इज नो. ऊपर वाला कभी ऐसा ना दिखाए, पर सपोज उस वक्त उसी फ्लोर पे कोई फूड काउंटर में आग लग गई, क्या अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे इससे क्या, मैं तो यहीं पे बैठ के नोट्स टाइप करते रहूं, मेरे को क्या लेना देना? नहीं फ्रेंड्स, मुझे भी वहां से खड़े होकर भागना होगा. तो हम हर वक्त ये नहीं बोल सकते कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, आई डोंट केयर, मुझे उससे क्या. आवर सेकंड assumption was laissez-faire. There is full employment. There is no government intervention in activities like production, consumption, distribution or that. फ्रेंड्स, ये सिचुएशन भी हर एक सर्कमस्टेंस में फेवरेबल नहीं होती. क्या हर एक के पास इनफ काम धंधा है? नहीं है फ्रेंड्स. अपने में से सबको पता है कि हर गली नुक्कड़ के चौराहे पे 4-5 लफंगे नमूने खड़े होते हैं जो टाइम पास करके खड़े हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू. गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफियर करती है. अगर गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती तो जीएसटी कहां से आता, नोटबंदी कहां से होती? सो फ्रेंड्स, आई हैव प्रूव्ड कि ये दोनों ही कंडीशंस हर सिचुएशन में फुलफिल नहीं होती है. इट मीन्स आवर माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज नॉट वैलिड इन एवरी सिचुएशन. तो यहां से आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर, तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक थियरी जब इनवैलिड है तो हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? फ्रेंड्स, लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग नाउ. Even though microeconomics is wrong, it is important to study. दुनिया की हर वो चीज जो बुरी हो, जो गलत हो, जो खराब हो, it does not mean कि वो चीज काम की नहीं है. फ्रेंड्स, स्नैक का जो पॉइजन होता है ना, बहुत खराब चीज है. सांप का जहर बहुत खराब चीज है, पर नो वन कैन से कि वो बिल्कुल काम का नहीं है. फ्रेंड्स, अगर किसी को सांप काटे ना तो उसको एंटी वेनम नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है. एंड बिलीव मी, ये इंजेक्शन क्या है आपको पता है? उसी सांप के पॉइजन को कुछ केमिकल में डालकर एक मिक्सचर बनाकर इंजेक्शन बनाकर दिया जाता है. तो जो सांप का पॉइजन बहुत खराब है वही पेशेंट को बचाने में काम लगता है. बचपन से हम सबको पता है कि दारू बहुत खराब चीज है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दारू पीना शुरू कर दो, दारू बहुत खराब चीज है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए. पर उसके बावजूद भी कुछ दवाइयों में अल्कोहल यूज होता है. फ्रेंड्स, अगर आजकल आप सुनते हो जो सैनिटाइजर यूज करने की बात की जा रही है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 70% अल्कोहल होना चाहिए. दैट इज दारू. इसका मतलब ये नहीं होता है कि दारू पीना शुरू करें, पर दारू खराब होने के बावजूद भी काम की चीज है. यस, सिमिलरली इवन दो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रॉन्ग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will cover the topic of importance of microeconomics. And friends, there is a last topic of microeconomics, so please don't miss that topic. Friends, I hope आप सभी लोग काफी अच्छे से अपने आप को संभाल रहे हैं और घर पे ही रहते हैं. Soon I'll approach you again. Thank you so much for your great cooperation. Thank you.